So what's in store for today? We have an article of the satellite motion with us today. So we are all going to deal with the various kind of the satellites today. That is a spice satellite, a heliocentric satellite, or a geosynchronous satellite, or a geostationary satellite, right? So all these or the polar satellites. So let's talk about the satellites today. Satellites दो किस्म की होती हैं. We have a natural satellite and an artificial satellite. पढ़ा हुआ है हमने पहले भी. So what are the natural satellites? Just like a moon of us is a natural satellite which is actually orbiting around us. काफी religious significance भी है ना? So we all actually look forward to the moon to appear or disappear in a lunar cycle, which actually is around 14.3 days, and after which we get right. What happened? So some crackle in the voice is coming. Ask. It's okay, man. No, it's the students also getting, or you are getting it? So like students, I think, are not getting. Your phone interference should be there, right? So I think my voice is coming clear. Kindly reply on my WhatsApp if my sound is coming clear. Please reply. Okay, Sandeep, thank you. I hope my sound is pretty clear. Right. So I was discussing about. Okay, Amit, thank you. So what I was discussing about कि the lunar cycle होती है, that is of the 14.3 days, and that's of a very good importance to us. We actually keep on thinking about that. When will we have the lunar cycles actually recycling itself? Okay, so that was a. उसके अलावा मून का कोई और सिग्निफिकेंस है? लाइक एक्चुअली डज मून हेल्प अस? टाइडल मोशन में हेल्प करता है. ओके, डस कुछ और मतलब कोई ऐसा तो है नहीं कि वहां से कोई हमें अर्थ की इमेजेस आती हो या हमें कोई कम्युनिकेशन में हेल्प मिलती हो मून से. तो ठीक है, सुंदरता के लिए अच्छा है, कोई अपना है ये बोलने के लिए अच्छा है, बट देन वी थॉट कि हमें अपनी अर्थ की वेदर मॉनिटरिंग करनी है, अलार्मिंग सिस्टम्स बनाने हैं कि कब साइक्लोन आएगा, कब सुनामीज आएंगी, वॉर्न करना है, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स डेवलप करने हैं, डिफेंस मैकेनिज्म्स कंट्रीज को डेवलप करना है कि कोई हमारे पे अटैक ना करे, है ना. और फिर अब देखना है कि भाई हमारी एग्रीकल्चर को कोई इफेक्ट ना हो, मतलब जब मॉनसून्स आते हैं जाते हैं कब उसके अकॉर्डिंगली हम सो करते हैं. तो इसका मतलब हमारे पास और बहुत सारी ऐसी applications हैं जो कि मून नहीं कर पाता है, and therefore we went for designing the artificial satellites. So many of them, we know that, and so many of students over here are also like fascinated towards going to NASA. A few of them. Okay, so let's start today's lecture with the article of launching a satellite. How do we launch a satellite? That's which is known as an article of the satellite motion. तो कैसे launch करते हैं उसको हम बोलते हैं principle of launching the satellite. तो एक स्टेज आर्टिकल है. स्टेज आर्टिकल मतलब फेजेस होते हैं इसके अंदर कि हम रॉकेट के साथ में हमारी सैटेलाइट को अटैच करते हैं और फिर उस पर्टिकुलर रॉकेट को हम फायर कर देते हैं. सो राइट, वी फायर दैट पर्टिकुलर rocket along with that particular satellite into the outer space, and when it reaches a destined height, दोबारा बोलूंगा, when it reaches a pre-calculated height, वो हाइट पहले से कैलकुलेटेड होती है. जब वो उस पर्टिकुलर हाइट पे पहुंच जाता है तो वहां पर उसको रॉकेट के फ्रेम से एक एंगल पे फायर करा जाता है. रिपीटिंग वंस अगेन, वो रॉकेट के फ्रेम से उसको एक एंगल पे फायर करा जाता है सच दैट इट गेट्स इनटू अ फ्री फॉल. मतलब वो रॉकेट के फ्रेम से डिटैच हो जाएगी सैटेलाइट और फिर वो एक फ्री फॉल में आ जाएगी. और वो फ्री फॉल ऐसी है, ऐसी बिल्कुल नहीं है कि जैसे यहां दिख रही है कि ये बंदा फ्री फॉल से कूदा और जमीन पर वापस आ गया. ऐसी फ्री फॉल हमें नहीं चाहिए. हमें फ्री फॉल ऐसी चाहिए जो कॉन्टिन्यूअस फ्री फॉल हो. मतलब वो गिरता रहे बंदा जीवन भर, पर एप्पल ना बने, गिरता रहे जीवन भर ग्रेविटी में, इस सोच के साथ में कि एक दिन मैं अर्थ को हिट करूंगा, पर कभी कर ना पाए. दैट्स अ कॉन्टिन्यूअस फ्री फॉल, एंड दैट्स व्हाट वी आर बेसिकली डिसाइडिंग एज अ ऑर्बिट ऑफ अ सैटेलाइट. तो इसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा कि अगर मान लो कि हमारा प्लैनेट है, आवर ब्यूटीफुल प्लैनेट अर्थ, तो हम इससे किसी एक सर्टेन हाइट पे, वो हाइट हमारी प्री कैलकुलेटेड है, ठीक है ना, हाइट प्री कैलकुलेटेड है, और वहां जाके हमने रॉकेट फ्रेम से उसको फायर करा और इतनी वेलोसिटी प्रोवाइड करी ताकि न्यूटन और कॉपरनिकस खुश हो जाएं. मतलब ताकि जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर आ जाए,
तो इस तरीके की वेलोसिटी प्रोवाइड करी ताकि ये इस तरीके से इसके अबाउट फ्री फॉल में रह जाए. इट्स ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ फ्री फॉल, always in a state of free fall, and that orbit is supposed to be the orbit of the satellite. तो हम इसको बोलते हैं as an orbit of satellite. अगर आप इससे कम वेलोसिटी देते तो फिर क्या होता, फिर ऐसा हो जाता कि पैराबोलिक पाथ क्रिएट हो जाता और वो सैटेलाइट जाके अल्टीमेटली अर्थ के ऊपर डाई डाउन कर जाती. फ्री फॉल में तो होती तो गिर जाती, हमारा नुकसान हो जाता. सो वी डिसाइडेड टू एक्चुअली कैलकुलेट एट पर्टिकुलर हाइट कि जहां से अगर हम उसको फायर करेंगे डायग्राम के अकॉर्डिंगली हॉरिजॉन्टली फायर्ड है ताकि वो एक सर्कुलर ऑर्बिट को यूज कर पाए. सो दिस इज सपोज टू बी द सर्कुलर ऑर्बिट एंड ऑब्जेक्ट और दैट सैटेलाइट इज इन अ स्टेट ऑफ फ्री फॉल. वो वैसे ही रहेगा, फ्री फॉल में ही रहेगा हमेशा. इट्स जस्ट अ फ्री फॉल ऑर्बिट. ओके, सो फ्री फॉल से याद आया कि एक लिफ्ट में फ्री फॉल होती थी. याद आया ऐसा कि अगर लिफ्ट में फ्री फॉल हो जाए, कोई हमारा दोस्त ऊपर वो केबल काट दे वही वाला, तो फिर क्या होता था, तो फिर हम गिरते थे नीचे और हमारा फ्लोर के साथ में कांटेक्ट छूट जाता था. तो अगर ये सैटेलाइट के अंदर कोई बंदा होगा, इफ देयर इज एनी पर्सन इनसाइड अ सैटेलाइट जिसको हम एस्ट्रोनॉट बोलते हैं, सो उस एस्ट्रोनॉट के भी पैर जमीन से उठ जाएंगे. रीजन दिस इज आल्सो इन अ स्टेट ऑफ फ्री फॉल, और वो लिफ्ट भी फ्री फॉल में होती थी एंड अ पर्सन इनसाइड दैट फ्रेम used to experience what did he used to experience underline weightlessness. So इसका मतलब जो एस्ट्रोनॉट इस पर्टिकुलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट के अंदर होगा, the satellite is also the same frame, it's in a state of free fall, so therefore he will also experience the article of weightlessness, और वो फ्लाई कर सकता है काइंड ऑफ, है ना, रोल कर सकता है एयर में. काफी सारे थीम पार्क्स बनते हैं जिसके अंदर वो ग्रेविटी एंटी ग्रेविटी फीलिंग आती है आजकल, तो काफी होते हैं. जैसे एस्ट्रोनॉट की सिमुलेशन प्रैक्टिसेस होती हैं, तो वो कि स्पेस में किस तरीके से उनको रहना है, किस तरीके से मूवमेंट्स होंगी. So we are here to calculate this particular speed with which this satellite is ever going to orbit over here. Ever going to orbit, जब तक हम उसको वहां से escape ना करा दें तब तक वो ऑर्बिट करती रहेगी. तो स्पीड को हम बोलते हैं as an orbital velocity. क्या नाम देते हैं? As an orbital velocity. So what is an orbital velocity? That is the speed of the satellite in that circular orbit. Repeating again, as a speed of the satellite in the circular orbit. है ना, सर्कुलर ऑर्बिट. एलिप्टिकल ऑर्बिट भी बन सकता है केपलर के अकॉर्डिंग, और हम किसकी बात कर रहे हैं? सर्कुलर ऑर्बिट, न्यूटन ऑर्बिट. दिस इज सपोज्ड टू बी अ न्यूटन ऑर्बिट. तो अब हम क्या करने वाले हैं? $1 million क्वेश्चन? नो नो, इजी क्वेश्चन. हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी इवैल्यूएट करनी है. सो वी आर गोइंग टू इवैल्यूएट नाउ द एक्सप्रेशन फॉर द ऑर्बिटल वेलोसिटी. राइट, एस्केप नहीं, एस्केप तो कर चुके हैं. ऑर्बिटल वेलोसिटी. So let's evaluate the orbital velocity with which the satellite keeps on orbiting continuously around the planet. वो planet हमारा Earth भी हो सकता है, right? So this is our satellite. उसका mass use कर लेते हैं small m, and this is the mass of the planet capital M. और center to center distance देख लेते हैं. तो center to center distance कितना होगा? That is smaller. That's the center to center distance. Smaller की value कितनी है? That's capital R plus H. Capital R क्या है? That's the radius of the planet, right? H क्या है? That is a height above the surface, right? That's the height above the surface of the planet, correct? Right? Capital M is supposed to be the mass of the planet, and small m is the mass of the satellite, right? So parameters define हो गए. और अब क्या करें? अब आसान काम करते हैं. आसान काम क्या है कि भाई सर्कुलर मोशन में जा रहा है, तो इससे आसान क्या हो सकता है? सर्कुलर मोशन में जा रही सैटेलाइट, इसका मतलब देयर मस्ट बी सम फोर्स व्हिच इज जनरेटिंग सेंट्रीपिटल फोर्स. और वो कौन सी है? कि चैप्टर में ग्रेविटेशन में. सो वी हैव द ग्रेविटेशन फोर्स सप्लाइज द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. सो भाई वो ग्रेविटेशन फोर्स है कितनी? सेंटर टू सेंटर लगा दो. स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए तो वैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आराम से लगता है. That is G capital M small m upon R square. That's a gravitation force supplying the necessary centripetal force. और centripetal force का formula M into V square by R. वो V क्या है? V orbital. It is moving with that orbital velocity or speed in this orbit. तो आपको उस orbital velocity का formula भी मिल जाता है. Small m cancel हो जाता है, मतलब एक बार फिर से ये जो expression है, that is independent of the mass of the satellite. It is independent of the mass of the satellite, right? एक smaller यहाँ से cancelled है,
So get the expression for the V naught as equal to root of G capital M upon small r. That's the expression for the V naught. That's the orbital velocity of that particular satellite, right? It is independent of the mass of the satellite. लिख लें, it is independent of the mass of the satellite. Satellite के mass पे depend नहीं करती है. अच्छा, किस पे डिपेंड करती है? मास ऑफ द प्लैनेट पे. और स्मॉलर क्या है वो भी लिख लेते हैं. स्मॉलर इज r प्लस h, कैपिटल R प्लस h. सो डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ द प्लैनेट आल्सो एंड ऑफ कोर्स द हाइट. मैंने पहले से ही बोला था कि एक पर्टिकुलर हाइट पे लेके जाते हैं फिर उसको फायर करते हैं. सो h इज एन इंपॉर्टेंट टर्म ओवर देयर, दैट वेयर इज द लोकेशन ऑफ दैट सैटेलाइट. उसके हिसाब से हम नाम भी देते हैं सैटेलाइट्स को, ठीक है ना, कि वो कहां पर है, कितनी हाइट पर है अर्थ के सरफेस से, उसके हिसाब से नाम भी दिए जाते हैं. देंगे भी हम नाम, ठीक है. तो एक नाम दे दें, फिर दे दें एक नाम. तो ऐसे हम बोलते हैं लो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट. क्या बोलते हैं? लो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट. सो लो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट लंबा चौड़ा नाम है, एक्साइटिंग नेम भी नहीं है, तो हम एक्साइटिंग नेम दे देते हैं स्पाई सैटेलाइट. हाँ, स्पाई सैटेलाइट का मतलब क्या है? अरे जो स्पाई करे, देखे भाई, जाके देखे कि बॉर्डर पे क्या हो रहा है ना. स्पाई स्पाई करे, क्लोज इमेजरीज ले कि क्या चेंजेस हो रही है, कंट्रीज क्या कर रही है. दैट्स नोन एज स्पाई सैटेलाइट. इतनी दूर से तो क्लियर क्रिस्टल इमेजेस नहीं आएंगी, है ना. तो इसी वजह से क्या करनी होती है, हमें लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स को डिजाइन करना पड़ता है, विद बेसिकली ऑफ कोर्स और भी पर्पस हो सकते हैं. सो एग्जैक्ट क्रिस्टल क्लियर इमेजरी फॉर द व्यू, इसके लिए हम स्पाई सैटेलाइट्स को यूज करते हैं. डिस्टेंस सरफेस ऑफ द अर्थ से कम है. टेक्निकली स्पाई सैटेलाइट को हम 100 किलोमीटर तक मानते हैं, और लो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स कैन बी अराउंड 200 किलोमीटर टू 2000 किलोमीटर आल्सो, तब भी उनको लो ऑर्बिटिंग बोलते हैं. सो लो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स आर अराउंड 200 किलोमीटर टू 2000 किलोमीटर, ये बोला जाता है. और स्पाई सैटेलाइट्स अप टू 100 किलोमीटर तक हम बोलते हैं. 100 किलोमीटर ये स्मॉल एच की वैल्यू है, हाइट की वैल्यू है, ठीक है. तो इसका मतलब एच की वैल्यू जो हुई वो कैपिटल आर से कम होगी. किसके लिए? स्पाई सैटेलाइट के लिए, for the spy satellite. So the value for the spy satellite, that is h, is much less than r. r से कम होगी, तो हम h को नेगलेक्ट कर लें. तो अगर हम h को नेगलेक्ट कर लेंगे तो ऑर्बिटल स्पीड हो जाएगी, एज अप्रोक्सीमेट कर दें, एग्जैक्ट फॉर्मूला तो यही है, इसको डब्बे में बंद कर लेते हैं, है ना. सो दैट बिकम्स एज gm अपॉन r, ऐसे आ गया स्पाई सैटेलाइट के लिए. ऑर्बिटिंग क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, क्या बोलेंगे? ऑर्बिटिंग क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ. और फिर हमारा जो कन्वर्जन फैक्टर है वो तो हम भूलेंगे नहीं. स्मॉल जी क्या होता है? जीएम अपॉन आर स्क्वायर. इसका मतलब जी एम कितना है? स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर. सो हेंस दैट इज इक्वल टू स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर. ये आर कैंसल्ड हो गया. सो ऑर्बिटल स्पीड कितनी हो गई? दैट बिकम्स रूट ऑफ जी इंटू आर. ये सिर्फ स्पाई सैटेलाइट की है, जनरल वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ स्पाई सैटेलाइट की है. और अगर ये अर्थ की स्पाई सैटेलाइट, ऑफ कोर्स हम अर्थ पे स्पाई करेंगे, सो देन दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी ऑन कैलकुलेशन. जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कैपिटल आर की वैल्यू 6.37 into 10⁻⁶ मीटर. ये वैल्यूज इसके अंदर प्लेस अप करोगे, दिस विल कम आउट टू बी 7.92 किलोमीटर पर सेकंड. कितनी वैल्यू है? 7.92. मतलब अप्रोक्सीमेट 8 भी कर सकते हो आप, एग्जैक्ट वैल्यू मैंने बता दी है, 7.92 किलोमीटर पर सेकंड, माय फ्रेंड्स. That's the value for the orbital speed of a close orbiting satellite to the surface of Earth, जिसको हम eventually spy satellite भी बोल सकते हैं. पर questions जो questions है उसके अंदर language change होके आ सकती है. So this can be the refurbished language. Oh, find the orbital speed of a satellite which is orbiting close to the surface of Earth. So कितनी value है? 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड. किलोमीटर पर आवर नहीं है, मीटर पर सेकेंड नहीं है, किलोमीटर पर सेकेंड है. मतलब एक सेकेंड में वो अराउंड 8 किलोमीटर ट्रैवल करती है. सो प्रीटी फास्ट ना. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी मतलब स्पीड पता चल गई है, और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है. दोबारा से ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, क्योंकि हम नहीं मान रहे कि स्पेस में इतनी हाइट पे जाके, है ना, अच्छी खासी हाइट पे जाके कोई एयर फ्रिक्शन होगी, और इस वजह से कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, और इस वजह से जो स्पीड है वो मेंटेन होगी, तो रेडियस भी मेंटेन हो जाएगा, एंड हेंस इट इज सपोज्ड टू बी नोन एज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. चलो जी आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो फिर हमारा मन करेगा कि बताएं भैया कितना टाइम लगता है एक सर्कुलर ऑर्बिट को कंप्लीट करने में, क्योंकि हमने डिफाइन करा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है.
तो फिर एक पूरा चक्कर काटने में कितना समय लगेगा उसको क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड. सो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन कितना बनेगा, दैट शुड बी द डिस्टेंस कवर्ड इन द होल, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस. तो एक पूरे रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस आया, 2πr. और कितनी स्पीड से, अरे वो तो कांस्टेंट थी, कितनी थी, ऑर्बिटल स्पीड. वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग because of the direction changes, but the speed remains constant in a uniform circular motion. So 2πr upon v naught, और v naught का एक्सप्रेशन कितना है, we just now calculated root of gm upon small r. आप small r को कभी भी r plus h लिख सकते हैं, h का मतलब हाइट होता है, अंडरस्टूड है. स्मॉल r को क्या बोलते हैं, दैट्स नोन एज एन ऑर्बिटल रेडियस. h को क्या बोलते हैं, हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, h इज द हाइट ऑफ द सैटेलाइट orbit above the surface of Earth. और smaller क्या है, that's a simple orbital radius. So v naught की वैल्यू को प्लेस कर लेते हैं, that's the orbital speed over there, that is root of gm upon small r. So the time period expression seems to be 2 pi upon root gm, that becomes r power 1 plus half. कितना हो गया, r power 1 plus half, और 1 plus half कितना होता है, 3/2. So that's your expression. Anytime you can also write this expression as t proportional to r power 3/2. क्यों, क्योंकि ये जो टर्म है ना ब्रैकेट में जो हमने रखी है अभी, वो कांस्टेंट है. कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और कैपिटल एम अरे मास ऑफ द प्लैनेट है, वो तो कांस्टेंट ही है. तो इसको हम एक रिलेटिव लॉ के फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. दिस इज नोन एज अ रिलेटिव लॉ. इसके काफी क्वेश्चंस आएंगे. मैंने आज आपको एनसीईआरटी का होमवर्क भेजा हुआ है, वो आपने करना है डेफिनेटली, और करके भेजना भी है, ठीक है ना, करके भेजना है, भूलिएगा मत. ओके, सो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. तो ऐसे क्वेश्चंस और मिलेंगे, ये वाले मैंने नहीं भेजे आज क्वेश्चंस, तो आज के लेक्चर के बाद ये भी भेज दूंगा, ऐसे वाले कंपैरेटिव. मतलब इस तरीके से आप कंपैरेटिव लगा सकते हो, t2 स्क्वायर अपॉन t1 स्क्वायर एज इक्वल टू r2 क्यूब अपॉन r1 क्यूब. सर ऐसा तो हम ना फर्स्ट चैप्टर में भी लगा लेते थे, है ना, एक बार हमने ऐसा लगाया हुआ है. तो ये कंपैरेटिव लॉ की तरह है, t2 अपॉन t1 होल स्क्वायर एज r2 अपॉन r1 होल क्यूब. मतलब एक किसी सैटेलाइट का आपको टाइम पीरियड और रेडियाई गिवन होगा, दूसरे का रेडियाई गिवन है, उसका टाइम पीरियड निकालना होगा. मतलब 4 में से 3 टर्म्स गिवन है, एक निकालनी होंगी. इस प्रकार के क्वेश्चन है काफी सारे. चलो, टाइम पीरियड मिल गया, बिल्कुल मिल गया जी, और ये एक्सप्रेशन बन गया. आप इसको याद रख लें, ये पूरा एक्सप्रेशन भी अपने फ्लैश कार्ड्स के लिए बना लें, इस एक्सप्रेशन को भी. वैसे मुश्किल बिल्कुल नहीं है, अगर आप इस लंबे एक्सप्रेशन को याद नहीं रखना चाहते तो बेसिक याद रख लीजिए, 2πr अपॉन v नॉट. और भी याद क्या रखना हो तो पता ही है, 2πr अपॉन ऑर्बिटल स्पीड. ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला ये है. अच्छा, इसको भी नहीं याद रखना, अच्छा तो डिराइव कर लेना, ग्रेविटेशन फोर्स इक्वल टू mv²/r. अब इतना लंबा नहीं करना आपने, तो फिर ये फॉर्मूला याद रख लो, ठीक है. सो आता तो है हमें कि किस तरीके से डिराइव करना, अगर भूल गए तो. सो दैट्स अ टाइम पीरियड एक्सप्रेशन. आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड. हाइट ऑफ द सैटेलाइट, जैसे मैंने बोला कि इट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स, कि ना किस हाइट पे हमारी सैटेलाइट होनी चाहिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जैसे हम कैमरा फोटोग्राफी करते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखना पड़ता है. अपने क्लासरूम में प्रोजेक्टर्स अगर हम लगाते हैं तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हमें उसको रखना पड़ता है. हम टीवी को व्यू करते हैं तो उसको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हमें रखना पड़ता है. सो दैट एग्जैक्ट हाइट एक्चुअली मैटर्स फॉर अस. That exact distance actually matters for us. So can we calculate that particular height? Of course we can. कैसे? हमने टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन बनाया, अभी क्या बनाया, याद हो गया, मेरे को तो याद है. That is 2 pi upon root gm, that's r power 3/2. r का मतलब क्या था, ऑर्बिटल रेडियस. उसका मतलब क्या था, that is equal to capital R plus h. ठीक है, h का मतलब क्या है, हाइट अबव द सरफेस. बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर. ठीक, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, t root gm अपॉन 2 pi, that is equal to r power 3/2. बिल्कुल लिख सकते हैं. अच्छा, पावर की अदला बदली करो, शिफ्ट द पावर टू द राइट साइड. So can we write the expression with your permission as equal to t root gm upon 2 pi whole power 2/3? Pretty much fine. इस तरीके से लिख सकते हैं. अब स्मॉल r को कैसे लिखें, कैपिटल R plus h लिख लें. That's t root gm upon 2 pi raised to the power 2/3. इस तरीके से लिख लें. अरे तो फिर हमारा आंसर जो हमें चाहिए था, that's delivered to us as h. So what is the value for h coming out to be? T root gm upon 2 pi raised to the power 2/3 minus of r. That becomes your expression for h. That's the height of the satellite above the surface of the earth. मैं mention कर रहा हूं as a height of the satellite
above the surface of the planet, है ना, वो planet हमारा डियर अर्थ भी हो सकता है ना। वैसे तो हम ये मोस्टली आर्टिकल अर्थ के लिए ही कर रहे हैं, अब जाके अब मार्स की सैटेलाइट थोड़ी ना लॉन्च करेंगे हम। तो दैट्स द हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबव द सरफेस ऑफ अवर प्लैनेट अर्थ, ठीक है। तो इसके अंदर से राइट साइड पे टर्म्स देखो, क्या पता है हमें? अच्छा, कैपिटल डी। अगर ये अर्थ की कहानी है तो टाइम पीरियड कितना होता है अगर ये अर्थ है तो? अरे अर्थ है तो टाइम पीरियड होता है 24 आवर्स ऑफ रोटेशन। दिस इज अ टी फॉर द टाइम पीरियड ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट, उस पर्टिकुलर सैटेलाइट की ऑर्बिट का टाइम पीरियड। चलो, कैपिटल जी पता है, कैपिटल एम पता है, मास ऑफ द प्लैनेट, कैपिटल आर पता है, रेडियस ऑफ द प्लैनेट। तो बेसिकली एच किस पे डिपेंड करा? बेसिकली एच कैपिटल टी पे डिपेंड करा। इसका मतलब जो हमने बोला कि प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग में हाइट की कैलकुलेशन हमारे पास पहले से होती है, इसका मतलब पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि कैपिटल टी उस सैटेलाइट का कितना रहेगा। क्या डिसाइड करते हैं? कि वो कैपिटल टी उस सैटेलाइट का कितना रहेगा, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको एच की वैल्यू मिल जाती है। करेक्ट है ना? और कैपिटल टी एक बार आपको पता चल जाता है तो अंडरस्टैंडिंगली की बात है कि उसके हिसाब से आपको ऑर्बिटल स्पीड भी पता चल जाएगी, क्योंकि जो ऑर्बिटल स्पीड है दैट इज रूट ऑफ जीएम अपॉन आर प्लस एच। मतलब अगर एच पता चल गया तो ऑर्बिटल स्पीड भी आ जाएगी। तो सारी कैलकुलेशन एक्चुअली इंटरवाइंडेड है ना। सारी चीजें पता होनी चाहिए, ऑर्बिटल स्पीड, कितनी स्पीड से उसको फायर करना है ऑर्बिट में, कितनी हाइट से करना है ना। और ये सब कैसे? जब आपका प्री डिसाइडेड है कि टाइम पीरियड कितना होगा। तो टाइम पीरियड इज बेसिकली प्री डिसाइडेड। चलो जी, तो तीन चीजें हमें समझ में आई, तीन डेरिवेशन करी हमने, ऑर्बिटल स्पीड, द टाइम पीरियड एंड द हाइट ऑफ द सैटेलाइट, द थ्री डिस्टिंक्ट डेरिवेशंस। आगे बढ़ते हैं एंड bring upon the fourth derivation, that is the energy of the satellite in the orbit। कितनी एनर्जी है भाई? एनर्जी का मतलब मैकेनिकल एनर्जी से है। देखो फ्रिक्शन तो है नहीं ना वहां पे, सो मैकेनिकल एनर्जी से है जो कि कंजर्व्ड है क्योंकि एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन है। तो मैकेनिकल एनर्जी के दो हिस्से हैं, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। पहले काइनेटिक निकालते हैं, कैसे? दैट इज द ग्रेविटेशन फोर्स। वो क्या है? जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स। सर ये तो पहले भी करा था पर अभी कुछ और करेंगे। स्मॉलर कैंसिल कर लेते हैं दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। किससे? हाफ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इफ यू डू दैट, इट बिकम जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 2r, दैट बिकम्स हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। अरे ये तो हमें कुछ मिल गया। What is half mv square? That is a kinetic energy. So we get an expression for the kinetic energy as g capital M small m upon 2r. That's the expression for the kinetic energy of that moving satellite in this described orbit. अच्छा, तो kinetic energy आ गई, अब आती है potential energy। अरे वो तो बहुत सौखी है, क्योंकि spherical objects हैं तो इनको point mass objects मान के कर सकते हैं, ये तो हम प्रूव कर चुके हैं पहले ही। So what is the expression for the potential energy of interaction between the two particles? That is minus g m1 m2 by r. What is r? The distance between the center to center, वो तो पहले से डिफाइंड है कि वो डिस्टेंस कितना है, वो दैट इज स्मॉल r. वेरी गुड। सो वी गेट दिस एक्सप्रेशन हाउ मच? माइनस जी कैपिटल m स्मॉल m, m1 m2 हो गए ना, एंड डिवाइडेड बाय द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, वो कितना है? स्मॉल r आ गया। तो ये तो तुरंत पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन भी क्लियर हो गया। अब क्या करें? मैकेनिकल एनर्जी लिख लो। तो दैट इज अ सम टोटल ऑफ बोथ द एनर्जी, दैट इज अ काइनेटिक एनर्जी and plus the potential energy. So that works as positive and negative. अच्छा, एक पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है, कौन जीतनी चाहिए? ये क्वेश्चन है हमारा अपने आप से कि भाई कौन सी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, काइनेटिक या पोटेंशियल। चलो मान ले कि काइनेटिक ज्यादा होगी, आपने स्पीड ज्यादा दे दिया, हमने कहा ज्यादा ले लो भाई काइनेटिक एनर्जी, तो क्या होगा? अरे तो टोटल एनर्जी पॉजिटिव आ जाएगी। अगर टोटल एनर्जी पॉजिटिव आ गई तो फिर पार्टिकल तो बाउंडेड ही नहीं रहेगा, पार्टिकल तो फ्री हो जाएगा, पार्टिकल तो एस्केप कर जाएगा, क्योंकि टोटल जीरो एनर्जी में पार्टिकल एस्केप कर जाता है। ये कल का लेक्चर है। और अगर एनर्जी पॉजिटिव होगी तो पक्का एस्केप करने के साथ में एक्स्ट्रा एनर्जी काइनेटिक फॉर्म में लेके इंटरस्टेलर स्पेस में घूम रहा होगा। तो क्या आपको सैटेलाइट को इंटरस्टेलर स्पेस में घुमाना है क्या? नहीं ना। तो फिर क्या करना पड़ेगा? स्टेबल ऑर्बिट चाहिए। जैसे इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के अराउंड स्टेबल ऑर्बिट है, उसी तरीके से इसका स्टेबल ऑर्बिट चाहिए। और स्टेबल ऑर्बिट कितना बनेगा? पोटेंशियल एनर्जी वेल से। मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए और नेगेटिव होनी चाहिए। और ऐसा है यहाँ पे, ऐसा है यहाँ पे। इसकी वजह से अगर आप इसको सम टोटल कर रहे हो, so half minus 1 becomes minus half, so that's minus of g capital M small m upon 2r. So overall energy is coming out to be negative,
सो यू गेट अ क्वेश्चन, व्हाट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेगेटिव साइन, कि अगर आपको यहाँ पे नेगेटिव साइन मिल रहा है कैलकुलेशन करने के बाद में, सो कैन यू मेंशन द सिग्निफिकेंस? वी सेड ऑफ कोर्स दैट इज ऑर्बिट is, क्या बोले, ऑर्बिट इज स्टेबल एंड इट्स अ बाउंडेड ऑर्बिट. क्या बोलेंगे? इट्स अ बाउंडेड ऑर्बिट. किसकी देन है, किसकी वजह से? अरे यहां से आया था, बिकॉज सिंस द ग्रेविटेशन फोर्स इज अट्रैक्टिव, इस वजह से हो पा रहा है. वहीं से नेगेटिव साइन की शुरुआत हुई है, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स क्या अट्रैक्टिव है, उसने क्या करा, पोटेंशियल एनर्जी को नेगेटिव करा, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हुई और मैग्नीट्यूड में ज्यादा हुई, जिसकी वजह से ओवरऑल एनर्जी नेगेटिव आती है. इसका अभिप्राय, सिग्निफिकेंस क्या होता है कि जो हमारा ऑर्बिट है, पहले तो बाउंडेड है, बाउंडेड बाय द ग्रेविटी, एंड द सेकंड इट इज स्टेबल एंड देयरफॉर इट्स अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन फॉर एवर. तो एक बार सैटेलाइट लगा दो, चलती रहेगी, मॉनिटरिंग होती रहेगी. राइट, सो दैट्स एन आइडिया ऑफ द एनर्जी. 3 फॉर्मूले मिले आपको, तीनों में क्या कोई लिंक है, चेक करते हैं. 3 फॉर्मूले मतलब पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड द टोटल एनर्जी. राइट अप जी. सो वी हैव द एक्सप्रेशन, तीनों लिख रहा हूं मैं. पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्रेशन एज इक्वल टू माइनस ऑफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर. काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेशन एज जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r, and the total energy expression as minus g capital M small m upon 2r. है ना, ये एक्सप्रेशन है. एक तो तीनों में पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1 by r, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1 upon r, टोटल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1 upon r. तीनों प्रोपोर्शनल टू 1 upon r है, तीनों तो तीनों का ग्राफ देखो कैसे बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. अरे ये कैसे होता है? अरे होता है ना, अगर हम इक्वेशन लेते हैं xy इक्वल टू c, तो उसका ग्राफ क्या बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. और सभी को पता होता है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ कितना बनता है. उसका ट्रेंड क्या होता है ग्राफ का, द ट्रेंड ऑफ द ग्राफ इज लाइक दिस, मतलब ना एक्स एक्सिस को टच करेगा ना वाई एक्सिस को टच करेगा. दैट्स अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ओके, सो ये बिल्कुल सेम है. पोटेंशियल एनर्जी इनटू आर कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी इनटू आर कांस्टेंट एंड ई इनटू आर इक्वल टू कांस्टेंट. इसका मतलब ग्राफ किस शेप का आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तीनों का. अच्छा, तो फिर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? देखो, काइनेटिक एनर्जी को आइडेंटिफाई करना सिंपल है, क्योंकि वो पॉजिटिव है तो ऊपर बनेगा, इट्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो दैट्स व्हाट यू कैन सी ओवर देयर. राइट, दैट्स अ ग्राफ एंड इट्स अ पॉजिटिव क्वोशिएंट ऑफ द ग्राफ. अब बाकी के लिए एक इजी सा बिहेवियर है. अगर आप आपस में रिलेशंस देखो, तो पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का रिलेशन देखो, तो पोटेंशियल एनर्जी इज कमिंग आउट टू बी ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी. डबल आ रही है, कितनी डबल आ रही है. बाकी रिलेशन में देख लो, काइनेटिक एनर्जी जो है दैट्स अ नेगेटिव ऑफ द टोटल एनर्जी, है ना. और पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू एज माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी. ये आपस में इंटरबाइंडेड रिलेशंस है तीनों एनर्जी के बीच में. ठीक है, अब देखो, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी दोनों नेगेटिव है, पीई एंड ई दोनों नेगेटिव है. सो दोनों ग्राफ कहां बनेंगे, इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. कहां बन रहे हैं, इन द फोर्थ क्वाड्रेंट बन रहे हैं, दोनों नीचे बन रहे हैं, क्योंकि एनर्जी नेगेटिव आ रही है ना. ये पॉजिटिव एनर्जी है, यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी आ रही है, तो दोनों पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी नेगेटिव है. लेकिन कौन बड़ी है, कौन ज्यादा है, तो इससे पता चला पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है. इस वजह से जो नीचे वाला ग्राफ है, जो हायर वैल्यू है, वो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, और जो क्लोजर टू एक्सेस है वो टोटल एनर्जी का ग्राफ है. दोनों नेगेटिव बने हैं, लेकिन टोटल एनर्जी इज क्लोजर टू योर एक्सेस एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज लार्जर, है ना. सो वो नीचे की तरफ बने. ठीक है जी, क्लियर है? यस सर, इज प्रीटी मच क्लियर. तो दीज आर द एनर्जी ग्राफ्स. एनर्जी एक्सप्रेशन भी बने और ग्राफ्स भी बन जाते हैं. सो 4 चीजें कर ली हमने, ऑर्बिटल स्पीड, time period, height of the satellite, and now the energy of the satellite in the orbit. Significance भी समझा नेगेटिव साइन का. Now it's a binding energy. देखो, बाइंडिंग तो है ना. अगर बाइंडेडनेस नहीं होगी, बाउंडेड ऑर्बिट नहीं होगा, तो भाग जाएगी सैटेलाइट, फ्री हो जाएगी, एस्केप कर जाएगी. So the term of the binding energy becomes very much important in this sense. So what is the binding energy? हम बाइंडिंग एनर्जी को उल्टे तरीके से सोच सकते हैं. उल्टे तरीके से मतलब हम ऐसा सोच सकते हैं कि कितनी एनर्जी अगर हम इसको दें, किसको, सैटेलाइट को, कितनी एनर्जी इसको दें ताकि ये एस्केप कर जाए, भाग जाए, है जी, ताकि एस्केप कर जाए, भाग जाए. इसकी टोटल एनर्जी है कितनी? इसकी टोटल एनर्जी है माइनस ऑफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2r. पर एस्केप कराने का लॉजिक क्या होता है, जो कल के लेक्चर से हमने सीखा, सूखा लॉजिक, डेफिनेशन तो साइड में गई.
है ना। जो सूखा लॉजिक था दैट वाज सपोज टू बी कि टोटल एनर्जी किसी प्रकार जीरो हो जाए। हम क्या करते थे भाई, हम देखते थे कि उसकी बाइंडेड एनर्जी कितनी है ना, और साथ में काइनेटिक एनर्जी दे देते थे, उतनी एनर्जी दे दी तो भाग गया, उसकी टोटल एनर्जी जीरो हो जाती थी। तो भाई भी वही तो हो रहा है, अभी उसकी एनर्जी इतनी आ रही है तो आप क्या दोगे, उसको थोड़ी एनर्जी दे दो, उसके ऊपर थोड़ा वर्क कर दो, इसकी वजह से थोड़ी एनर्जी इन्फ्यूज हो जाए और इसकी कुल मिला के एनर्जी जीरो हो जाए। तो आप क्या कर रहे हो, आप E प्लस EB करके उसको जीरो कर दोगे, उसकी टोटल एनर्जी जीरो कर दोगे। मतलब पहले कितनी थी, -Gmm/2r, और आप उसको कितनी एनर्जी दे रहे हो, +Gmm/2r। तो आपने इतनी एनर्जी प्रोवाइड करी ताकि उसकी टोटल एनर्जी जीरो हो गई। इसका मतलब वो क्या कर गया, एस्केप कर गया। सो व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी, दैट इज अ मिनिमम एनर्जी given to the satellite such that it can escape to infinity. भाग जाएगा वो, so it can escape to the infinity, so it rushes from there to infinity, and hence the expression for the binding energy is G(M) upon 2r. Simple. So definition भी क्रिएट हो गई और कॉन्सेप्ट भी क्रिएट हो गया और एक्सप्रेशन भी आपको मिल जाता है। क्लियर है जी, अंडरस्टूड है। एनर्जी टोटल नेगेटिव थी, सिग्निफिकेंस समझा हमने, उसकी वजह से वो बाइंडेड था। अब क्या करा हमने भाई, देखो उसमें रहना भी तो है। आप ऐसा मत सोचना कि खाली पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं सर, ऐसा मत सोचना, क्योंकि स्टेशनरी नहीं है वहां पे, वो घूम रहा है, इट इज नॉट स्टेशनरी। और स्टेशनरी होगा तो गिर जाएगा अंदर, सीधा आ जाएगा स्ट्रेट लाइन में। तो घूम रहा है तो टोटल एनर्जी देखनी पड़ेगी, और एस्केप कराना है तो जो पूरा बंधन है उसको पूरा तोड़ना पड़ेगा। सो दैट इज अ पॉजिटिव ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, दैट्स द बाइंडिंग एनर्जी। चलो ये भी डन हो गया, आगे बढ़ते हैं एंड टॉक अबाउट द डिफरेंट नेचर ऑफ द ऑर्बिट्स। Now, in your school curriculum article, the Kepler laws of motion has been deleted from this year's syllabi. Of course, it will appear in the NTA examination when you're going to write the paper in 2022 also, or 21, right? So this means that that portion will have to be covered. So, of course, मैं उसको competitive class में cover up करूँगा later on. Now, अभी मैं, क्योंकि ये बात मैंने क्यों बोली, रीजन ये जो मैंने आपके सामने इमेजरी रखी है, जिसे बेसिकली टॉकिंग अबाउट द पॉसिबल पाथ्स, टॉकिंग अबाउट द पॉसिबल पाथ्स। हमने अभी क्या बोला था कि हम सर न्यूटन को और कॉपरनिकस सर को खुश करके आए। कैसे, हमने इतनी स्पीड प्रोवाइड करी ताकि जो ऑर्बिट है वो कैसा हो, सर्कुलर हो। भाई हम ज्यादा भी तो दे सकते हैं स्पीड, कम भी तो दे सकते हैं स्पीड, है ना। तो अगर हमने सर्कुलर ऑर्बिट के करस्पॉन्डिंग स्पीड दी है तो उसको हमने वी ऑर्बिटल का नाम दे दिया। किसके करस्पॉन्डिंगली, फॉर द सर्कल। अगर उससे हल्की सी कम दें लेकिन तब भी वो फ्री फॉल में रहे, दोबारा से उससे हल्की सी कम दे लेकिन तब भी वो फ्री फॉल में रहे, तो जो पाथ होगा वो एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं होगा, एलिप्टिकल आएगा। दैट इज v लेस देन v0 लेकिन ऑर्बिट है। सो कैसा ऑर्बिट है, एलिप्टिकल ऑर्बिट है। किस तरीके का, एलिप्टिकल ऑर्बिट है ना। ज्यादा कम कर दोगे, ज्यादा कम कर दोगे तो हो सकता है वो ऐसे टकरा जाए। तो टकराना नहीं है, फ्री फॉल में रहना है, लेकिन स्पीड ऑर्बिटल से कम है तो सर्कुलर ऑर्बिट नहीं बनेगा और एलिप्टिकल बनेगा, जो कि बेसिकली केप्लर्स लॉ से डिफाइंड है। और अगर आप स्पीड की वैल्यू v0 से ज्यादा करते हो, क्या करते हो, v0 से ज्यादा कर देते हो, तो आपने स्पीड की वैल्यू ऑर्बिटल स्पीड से ज्यादा कर दी, तो फिर से पॉसिबल है कि वो एलिप्स में बनेगा। तो सर पहले भी एलिप्स बना, बाद में भी एलिप्स बना, सर दोनों को अलग करो। अच्छा कर लेते हैं। तो पहले हम उसको बोलते हैं इनर एलिप्स, जो अंदर वाला एलिप्स बना ना, इसको हम बोलते हैं इनर एलिप्स। इनर मतलब वो सर्कुलर ऑर्बिट के कम जगह पे बना, है ना। तो उसका ऑर्बिट साइज सर्कुलर ऑर्बिट से छोटा है, इस वजह से उसको क्या बोल रहे हैं, इनर एलिप्स। और ये जो एलिप्स अब दिख रहा है आपको बड़ा वाला, जिसका ऑर्बिटल साइज बड़ा है, सर्कुलर ऑर्बिट से बड़ा है, उसको हम बोल रहे हैं आउटर एलिप्स। तो इसका मतलब दोनों एलिप्स के लिए जो रेफरेंस है वो सर्कुलर ऑर्बिट है, ठीक है। तो अगर स्पीड ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज्यादा होगी तो वो एलिप्टिकल ऑर्बिट बन सकता है, लेकिन ज्यादा अधिक मत कर देना। मीनिंग एस्केप से कम रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर एस्केप स्पीड के बराबर आ गई तो भाग जाएगा वो, इट इज गोइंग टू मतलब भाग जाएगा। कहां पे चला जाएगा, तो भाग जाएगा कहीं पे भी, इंफिनिटी पे चला जाएगा। तो उसका जो पाथ होगा, क्या बोला मैंने, उसका जो पाथ होगा
वो ओपन हो जाएगा, क्लोज नहीं रहेगा। अच्छा, इसे बात समझ में आती है। इफ द ऑर्बिट इज क्लोज्ड, इट इज स्टेबल एंड ऑफ कोर्स बाउंडेड। इफ द ऑर्बिट इज क्लोज, अब क्लोज में तो सर्कल भी हो सकता है और एलिप्टिकल भी हो सकता है, मतलब न्यूटन लॉ भी सही लगेंगे और केपलर्स लॉ भी सही लगेंगे। तो इस वजह से हमने क्या बोला, क्लोज ऑर्बिट, बाउंडेड ऑर्बिट, है ना, इट इज सपोज टू बी स्टेबल ऑर्बिट। क्लोज ऑर्बिट, बाउंडेड ऑर्बिट, स्टेबल ऑर्बिट। क्या बात है। और अगर एस्केप वेलोसिटी से कम रहेगी तो फिर वो आउटर एलिप्स में चलता रहेगा, और अगर एस्केप के बराबर हो गई भाग जाएगा, फिर भाग जाएगा। तो v इक्वल टू वी एस्केप होगा, फिर वो भाग जाएगा। और उसका पाथ क्या होगा, बाउंडेड नहीं होगा तो क्या होगा, क्वेश्चन पूछेगा तो हम आंसर क्या देंगे, पैराबोलिक होगा। क्या हो जाएगा, पैराबोलिक हो जाएगा। द पाथ इज गोइंग टू बिकम व्हाट, पैराबोलिक। और फिर क्वेश्चन ये पूछे है कि सर आपने अगर उससे भी ज्यादा दे दी, सारी पॉसिबिलिटी सोचो ना, उससे भी ज्यादा दे दी तो वो एस्केप कर जाएगा। कल ही कर गया था, कल के आर्टिकल में एस्केप कर गया था। और जो एक्स्ट्रा दे दे, हमने एक्स्ट्रा दे दी, तो वो काइनेटिक एनर्जी लेके घूम रहा होगा इधर उधर, काइनेटिक एनर्जी लेके इधर उधर घूम रहा होगा, तो उसका पाथ क्या होगा सर, क्वेश्चन ये पूछेगा। और दैट विल बी हाइपरबोलिक, दैट विल बी द हाइपरबोलिक पाथ ओवर देयर। क्या मजेदार आर्टिकल हो गया, है ना। ऑर्बिटल स्पीड से हल्की सी कम स्पीड होगी तो वो इनर एलिप्स में होगा, स्टेबल होगा, बाउंडेड होगा, क्लोज ऑर्बिट रहेगा, ठीक है। ऑर्बिटल स्पीड के एग्जैक्टली बराबर होगी तो कॉपरनिकस न्यूटन से खुश रहेंगे, सर्कुलर ऑर्बिट बनेगा, जिसका फॉर्मूला निकाल चुके हैं हम, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ जीएम अपॉन स्मॉल आर, है ना। तो एक तरीके का ये क्रिटिकल बिहेवियर हो गया। और अगर स्पीड इससे हल्की सी ज्यादा होगी तो ऐसा नहीं है कि सैटेलाइट लुप्त हो जाएगी, भाग जाएगी, नहीं, इट विल स्टिल बी एन ऑर्बिट। कौन सा, इलिप्टिकल ऑर्बिट, वो भी क्लोज है, वो भी बाउंडेड है, वो भी स्टेबल है, बट बाउंडेड बाय केपलर लॉज, है ना, उसको आउटर एलिप्स बोलेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि एस्केप वेलोसिटी को टच ना करे जाए। अगर एस्केप वेलोसिटी आ गई तो भाग जाएगा, और उसका पाथ क्या हो जाएगा, ओपन। अब बिल्कुल स्टेबल नहीं रहेगा, वो ओपन पाथ हो जाएगा। पाथ का नाम क्या होगा, पैराबोलिक। और अगर आप जस्ट एस्केप ना, जस्ट एस्केप जिसकी वैल्यू हमने कल निकाली थी, है ना, जस्ट एस्केप, और अगर आपने उससे ज्यादा स्पीड दे दी, उससे ज्यादा स्पीड दे दी, तो भाई वो एस्केप भी कर गया और एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी भी आ गई, और उसका पाथ क्या बन जाएगा, हाइपरबोलिक, है ना। मजेदार आर्टिकल, इट्स क्वाइट ऑफ अ फन आर्टिकल आल्सो, व्हिच कैन बेसिकली डिस्क्राइब ऑल द पॉसिबल पाथ और द ट्रैजेक्टरीज ऑफ दिस पार्टिकल। अब ये हाइपरबोलिक ट्रैजेक्टरी किसकी होती है, जो एस्केप कर गया। तो ऐसे मत बोलना आंसर, अगर कोई पूछता है कि हाइपरबोलिक ट्रैजेक्टरी किसकी होती है तो आप बोलोगे कॉमेट्स की होती है। किसकी होती है, कॉमेट्स की। सो दिस इज बेसिकली फॉर द कॉमेट्स व्हिच हैव सो मच ऑफ एनर्जी कि कोई भी प्लैनेट की ग्रेविटी उसको बांध नहीं पाती पूरी तरीके से, मतलब उसको अपना मून नहीं बना पाती। अगर प्लैनेट की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती ना, बाइंडेडनेस इतनी स्ट्रांग होती, तो फिर वो उसको अपना मून बना लेती है। जैसे जुपिटर की इतनी स्ट्रांग है तो वो अपने पता नहीं 10-11 मून्स लेके एग्जिस्ट कर रहा है, हम बेचारे एक ही मून लेके एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट। सो अगर स्पीड ज्यादा हो जाएगी उसकी, है ना, पार्टिकल की, और ग्रेविटी वीक रह जाएगी, सो देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इट इज गोइंग टू इवेंचुअली बिकम अ कॉमेट। ओके जी, तो चलो इंटरेस्टिंग बातें हुई, अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। और जो हमने सीखा उस बात को समझते हैं कि एस्केप वेलोसिटी कितनी है। ये तो कल निकाली थी, तो आज दोबारा क्यों निकालें। एस्केप वेलोसिटी चेक अपॉन करते हैं कि कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू फॉर द एस्केप वेलोसिटी। अरे तो एस्केप वेलोसिटी तो हमें निकालनी आती है। इस जगह पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर, ठीक है। इस जगह की क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर, ठीक है। और एस्केप का कॉन्सेप्ट क्या है, उतनी काइनेटिक एनर्जी दे दो ताकि नेट एनर्जी जीरो हो जाए, और दैट इज प्लस हाफ एम वी एस्केप स्क्वायर, दैट बिकम जीरो, है ना। उस लोकेशन पे, उस लोकेशन पे अभी तो ऑर्बिट में गया ही नहीं ना, हमने तो एस्केप कराना उसको। तो हमने क्या करा, वहां ले गए, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस ऑफ जी एम एम बाई आर, और वहां पे उसको काइनेटिक एनर्जी दे दी कि भाग जा, तो भाग गया। वो हाफ एम वी स्क्वायर दे दी हमने उसको, भाग गया। कितनी दी, ताकि उसकी नेट एनर्जी जीरो हो जाए। इसको बाइंडिंग एनर्जी से कंफ्यूज मत करना, ठीक है ना, बिल्कुल कंफ्यूज मत करना, क्योंकि अभी ये ऑर्बिट में आया नहीं है, अभी तो हम उसको लेके गए हैं वहां पे, से वहां पे लेके गए, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, और अब हमने उसको इतनी काइनेटिक एनर्जी दी ताकि वो एस्केप कर जाए, उस लोकेशन से भाग जाए। तो ये सॉल्व कर लेते हैं, दैट बिकम जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर एंड इज इक्वल टू हाफ एम वी एस्केप स्क्वायर, स्मॉल एम कैंसिल हो जाता है और ये आ जाता है 2 जी एम अपॉन स्मॉल आर
इक्वल टू वी एस्केप स्क्वायर, सो वी एस्केप की वैल्यू आ जाती है √2gm/r। या अब कोई आके कहता है यार ऐसा मत करो यार, उसको ऑर्बिट में डाल दो। अरे ये क्या बात है, अब उसको ऑर्बिट में डाल दो, अच्छा तो फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो फिर उसको ऐसी वेलोसिटी दे दो टेंजेंशियली ताकि वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता रहे, अच्छा तो दे दो, तो फिर वो ग्रेविटेशन फोर्स होगी जो कि सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी, लेकिन अब वो स्पीड क्या हो जाएगी, ऑर्बिटल हो जाएगी। अच्छा तो ऑर्बिटल की वैल्यू आ गई, वहां से ऑर्बिटल कितनी आ गई, √gm/r। सर ये तो निकाली हुई है हमने, रिवाइज हो गया फिर। अच्छा तो फिर हमने सोचा कि दोनों को कंपेयर करना, दोनों को कंपेयर करना, तो पता चला कंपेयर करके कि जो वी एस्केप आ रही है दैट इज √2 टाइम्स ऑफ वी ऑर्बिटल। इसके अंदर कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, यहाँ दोनों में स्मॉल आर ही है ना। तो दिस इज एग्जैक्टली √2 टाइम्स ऑफ वी ऑर्बिटल। अभी हमें बात समझ में आ रही है कि जब हम क्या बोल रहे थे कि जो स्पीड होनी चाहिए वो ऑर्बिटल से ज्यादा और एस्केप से कम होनी चाहिए, तो वो आउटर एलिप्स बनेगा। क्या बनेगा, आउटर एलिप्स बनेगा। तो ये बात थोड़ी समझ में आई, तो हमने कहा पिछली स्लाइड पे चलते हैं और ये बात मेंशन कर लेते हैं कि जो यहाँ पे हमने लिखी थी कि स्पीड ऑर्बिटल से ज्यादा थी लेकिन एस्केप से कम थी, मतलब √2 टाइम्स ऑफ वी ऑर्बिटल से कम थी, तो फिर वो आउटर एलिप्स में अपने ऑर्बिट को डिफाइन रखेगा। √2 कितना होता है, 1.41 वी नॉट, 1.41 वी नॉट, मतलब वी नॉट से 1.41 के बीच में। अगर 1.5 भी हो गई तो एस्केप कर जाएगा। 1.5 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी इट इज गोइंग टू एस्केप, राइट। सो दैट्स अ क्रिटिकल बिहेवियर कि उसकी स्पीड v नॉट और √2 v नॉट के बीच में होगी तो एलिप्टिकल पाथ में होगा, लेकिन वो तब भी स्टेबल रहेगा। चलो जी, ये बात भी क्लियर हो जाती है। एक क्वेश्चन आता है, इसका क्वेश्चन किस लैंग्वेज से आता है, क्वेश्चन कम्स व्हाट एक्स्ट्रा स्पीड must be given to an orbiting satellite such that it escapes। ये क्वेश्चन है ना, क्या क्वेश्चन है, मैंने बोला भी आपको कितनी एक्स्ट्रा स्पीड आपको उस ऑर्बिटिंग सैटेलाइट को देनी चाहिए ताकि वो उसी जगह से एस्केप कर जाए। अब ऐसा तो है नहीं कि उसको एस्केप कराना है तो उसको अर्थ पे वापस लेकर आएंगे। Now the point over here is that why will we want our satellite of so much expenses to escape? हम क्यों चाहेंगे कि वो escape हो जाए? So that answer is also gonna come in the today's lecture, right? तो फिलहाल की हमारा आर्टिकल क्या है कि हम उसको escape करवा रहे हैं, तो हमें escape कैसे कराएं? अच्छा देखो उसकी कुछ तो वेलोसिटी है वहां पे, कितनी ऑर्बिटल, तो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा देंगे तो उसके escape के बराबर हो जाएगी तो भाग जाएगा। अच्छा तो दैट्स द लॉजिक ऑफ द क्वेश्चन कि एक्स्ट्रा वेलोसिटी कितनी देनी है, सो दैट एक्स्ट्रा वेलोसिटी विल बी एस्केप माइनस ऑफ ऑर्बिटल, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी ऑर्बिटल से ज्यादा है, मतलब 3 है और आपको 4 चाहिए तो डिफरेंस ले लोगे ना, यही होगा ना, तो इतनी एक्स्ट्रा दे दोगे। सो वी एस्केप कितनी है, √2 ऑफ वी नॉट एंड माइनस ऑफ वी नॉट, दैट बिकम्स √2 माइनस 1 ऑफ वी नॉट, और √2 होता है 1.41 माइनस ऑफ 1, सो दैट्स 0.41 वी नॉट, मतलब 41% एक्स्ट्रा वेलोसिटी दे दो तो वो एस्केप कर जाएगा। That's a beautiful question, right? And it's basically actually relates the two article जो कि हमने कल करा और जो हमने आज करा। बातें तो एक ही होती हैं, अलग अलग दिन पढ़ने से क्या होता है कि कॉन्सेप्ट थोड़े क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं, नहीं तो क्लब ऑन हो जाता है ना कि एस्केप वेलोसिटी क्या थी, ऑर्बिटल क्या थी। कल का पूरा लेक्चर एस्केप वेलोसिटी का था, क्वेश्चंस करे हमने मजे से इतने सारे। आज का लेक्चर ऑर्बिटल वेलोसिटी पे बेस्ड है, ठीक है। सो क्लियर हो गया, तो जब भी आप रिवाइज भी करना चाहोगे लेक्चर को तो आपको मतलब नोट्स के थ्रू, क्योंकि अब तो लाइव चल रहा है ना आपकी वजह से, क्योंकि अब लगाते नहीं थे ना टाइम पे, रेगुलर लगाते नहीं थे टाइम पे, तो मेरे को ये करना पड़ा। वो अच्छे वाले चल रहे थे लेक्चर डिजिटल बोर्ड पे, फिर आपने मुझे फोर्स किया कि हम तो नहीं लगाएंगे सर टाइम पे क्लास, है ना, आप डाल दो, हम तो अपनी मूड से देखेंगे, तो मुझे करना पड़ा आपके लिए। आई हैव टू बी ड्यूटीफुल टू यू। नेक्स्ट वन सो दीज आर द पॉसिबल ऑर्बिट्स, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, पॉसिबल ऑर्बिट्स जो है सारे बता चुका हूँ, और ये जिसके लिए भी क्लोज्ड ऑर्बिट्स होंगे, है ना, क्लोज ऑर्बिट्स दो ही होंगे, या तो सर्कुलर या तो एलिप्टिकल। एलिप्टिकल में दो ऑर्बिट्स है, बता दिया मैंने, इनर एंड आउटर, दोनों स्टेबल हैं, दोनों स्टेबल ऑर्बिट्स होंगे, और इसका मतलब जो एनर्जी आएगी वो नेगेटिव आएगी, द टोटल एनर्जी विल बी नेगेटिव।
जब पार्टिकल एस्केप कर जाता है, क्या बोला मैंने, जब पार्टिकल एस्केप कर जाता है, कब करेगा, जब v की वैल्यू v एस्केप के बराबर हो जाएगी, तो एनर्जी 0 हो जाएगी। ये कल के लेक्चर में पढ़ा हमने। और अगर उसकी हाई स्पीड दे दी हमने, ये जैसे हमने दे दी, मतलब v की वैल्यू v एस्केप से ज्यादा होगी, तो टोटल एनर्जी उसकी मोर देन 0 आएगी, मतलब पॉजिटिव हो जाएगी। तो बाउंडेड ऑर्बिट्स के लिए, क्लोज ऑर्बिट्स के लिए, स्टेबल ऑर्बिट्स के लिए बाउंडेड भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, इनके लिए जो एनर्जी होती है वो क्या रहती है, लेस देन 0, मतलब नेगेटिव रहती है। तो एलिप्टिकल और सर्कुलर दोनों के लिए एनर्जी नेगेटिव ही है। एस्केप कर गया तो एनर्जी 0 हो गई, और हाई स्पीड में मतलब एस्केप भी कर गया और काइनेटिक एनर्जी भी उसके पास में, तब हम क्या बोलेंगे, E इज ग्रेटर देन 0। अंडरस्टूड? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो शून्य होगी, इन्फिनिटी पे पहुंच गया, तो सारी एनर्जी काइनेटिक है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। सो टोटल एनर्जी इज ग्रेटर देन 0। राइट जी? सो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्बिट्स में हमें समझ में आ गए हैं। तो अब क्या बचता है, अच्छा, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि बेचारा घूमे ही जा रहा है, आगे तो जा नहीं रहा, घूमे ही जा रहा है। हाँ, वो गैलेक्सी आगे जा रही होगी तो वो साथ में जा रहा होगा, वो हमारा यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है। तो मतलब हम ये मान के चले रहे हैं कि भाई वहीं पे टिकी हुई अर्थ, और ये उसके आराम घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। सो इट हैज अ मोमेंटम, बट एन एंगुलर मोमेंटम। व्हाट्स द एंगुलर मोमेंटम, किसका निकाले, रिजिड बॉडी का। ये तो दूर है ना, ये तो इमेंसली दूर है। तो अगर ये दूर है तो इसका मतलब इट कैन बी ट्रीटेड एज अ पार्टिकल, और ये सर्कुलर ऑर्बिट है। अच्छा, तो सर्कुलर ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, mvr, याद है आपको, क्या है, mvr। तो दैट्स योर एंगुलर मोमेंटम। v क्या है, अरे ऑर्बिटल स्पीड। अच्छा, ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ gm अपॉन स्मॉल r। सो व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, दैट इज m, v नॉट की जगह रूट ऑफ gm अपॉन स्मॉल r and into r। So as expression, that is small m root gm into small r. That becomes your expression for the angular momentum of this. And is it constant? It is. It is constant. In direction and magnitude both, क्या बदल रहा है, कुछ भी नहीं बदल रहा। स्मॉल m नहीं बदलेगा, कैपिटल G कैपिटल M नहीं बदलेगा, रेडियस ऑफ ऑर्बिट भी नहीं चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, फ्रिक्शन थोड़ी है। इसका मतलब दिस इज बिहेविंग एज अ कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, इसका मतलब, अरे टॉर्क का फॉर्मूला होता था dl अपॉन dt। अच्छा, तो टॉर्क 0 हो गया क्योंकि l तो कांस्टेंट है। अच्छा, तो टॉर्क 0 वो तो पहले से पता है, क्योंकि अगर ये यहां पर है और ये फोर्स देखें तो ग्रेविटेशन फोर्स आ रही है। और ग्रेविटेशन फोर्स कैसे आ रही है, सेंट्रल फोर्स है। और सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है, अरे द लाइन ऑफ एक्शन इज पासिंग अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल। तो फिर टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होगा, क्योंकि फोर्स तो सेंटर से ही पास कर रही है, एंड देयरफॉर बिकॉज ऑफ द सेंट्रल नेचर द टॉर्क इज 0। और अगर टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। कैसे भी कान पकड़ लो, है ना, घूम फिर के बाद सारी कनेक्टेड हो गई कि बिकॉज द ग्रेविटेशन फोर्स इज द सेंट्रल फोर्स एंड देयरफॉर द टॉर्क इज इक्वल टू 0। और अगर टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। तो उसका एक्सप्रेशन कितना है, क्योंकि सर्कुलर बात है, सो इट इज mvr। उसके अंदर v क्या है, ऑर्बिटल स्पीड है, तो हमें उसका एक्सप्रेशन भी मिला और पता भी चला कि वो कांस्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दैट्स एन आर्टिकल ऑफ द एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट फॉर दिस। मोटिवेशन की बात यहां पर ये है कि जब हम इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट भी देखते हैं तो भी एटॉमिक फिजिक्स में there is a third postulate which basically says the same thing, that angular momentum of the electron in a circular orbit around the nucleus is supposed to be constant and is equal to nh upon 2 pi। expression लिखते हैं हम mvr equal to nh upon 2 pi। so that's an exact analogous behavior, है ना, कि जैसा माइक्रो फिजिक्स में है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में रहता है, वैसे ही मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर में वी हैव द सैटेलाइट अराउंड द प्लैनेट इन अ कंजर्व्ड एंगुलर मोमेंटम बिहेवियर। और दोनों का रीजन सेम है, दैट टॉर्क इज इक्वल टू 0। तो वहां पे फोर्स अलग होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है। यहाँ पे जो फोर्स है वो ग्रेविटेशन है। ये बातें हमने फर्स्ट लेक्चर इन द +1 में डिस्कस करी थी, फंडामेंटल फोर्सेस में, आज भी कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, a geostationary satellite is one of the very famous satellite with respect to your curriculum। with respect to your curriculum मतलब आपसे ज्यादातर क्वेश्चन जियोस्टेशनरी सैटेलाइट के पूछे जाएंगे, पोलर सैटेलाइट के ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। सो व्हाट इज अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, ब्रेक करो। जियो स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब रुकी हुई है, पर वो गलत है, वो रुकी नहीं हुई है। जियो वो इसलिए मैंने वो रनिंग एनिमेशन बनाया है, ऊपर वाला मैंने नहीं बनाया, मतलब यहाँ पे प्लेस करा है, तो वो घूम रही है, ये बताने के लिए कि वो स्टेशनरी नहीं है।
तो जो मतलब वर्ड है उसके ऊपर ना जाए कि स्टेशनरी, वैसे भी अपने को तो सब पता है रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ऑब्जर्वर। तो भाई अपना ऑब्जर्वर है कहाँ और ये सैटेलाइट है कहाँ और ये जियो स्टेशनरी का नाम क्यों आया? तो जियो जोग्राफिकली बोल सकते हैं, तो जोग्राफिकली स्टेशन सैटेलाइट कितना कैसे देखते हैं। द फर्स्ट आइडिया ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज सपोज टू बी एन इक्वेटोरियल प्लेन। ये आपको दिख रहा है यहाँ से, दिस इज एन इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है। सो द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑलवेज मूव्स इन एन इक्वेटोरियल प्लेन, ये इसकी कंडीशन है, राइट। सो दैट्स द फर्स्ट कंडीशन, it must move in the equatorial plane. Equatorial plane का मतलब क्या है भाई? That's a plane is a plane which is actually having the equator, right? So मतलब इस तरीके से ये plane है and that is having the equator. So it must be actually moving in this plane itself, correct? So that's plane. So कहाँ move कर रही है? Of course around Earth. कहाँ पे? कहाँ के मतलब? Is from west to east. That is the same sense of rotation as of Earth. Repeating again, same sense of rotation as of Earth. So it rotates, it moves लिख देते हैं, from west to east direction. ठीक है, करेक्ट है जी, ओके। सो वेस्ट से ईस्ट मतलब रेवोल्यूट कर रही है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ओके। जैसे अर्थ रोटेट करेगी वेस्ट से ईस्ट, ये भी रोटेट करेगी वेस्ट टू ईस्ट। व्हाट इज अ स्पीड? विच स्पीड भाई? आगे तो नहीं जा रही ना, तो एंगुलर स्पीड की बातें हो रही हैं। सो व्हाट इज एंगुलर स्पीड? तो एक तो अर्थ की स्पीड होगी एंगुलर, कौन सी? रोटेशन वाली, जिसकी वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं 7.27 इंटू 10⁻⁵ रेडियंस पर सेकेंड, ठीक है। सो द थर्ड इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ एंड द सैटेलाइट इज सेम। अगर ऐसी कोई सैटेलाइट है जिसकी एंगुलर स्पीड सेम है, वो इक्वेटोरियल प्लेन में है और वो सेम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ पे ही रेवोल्यूट कर रही है, अर्थ रोटेट कर रही है, सैटेलाइट रेवोल्यूट कर रही है, ओमेगा सेम आ रही है, सेम डायरेक्शन में, तब उस सैटेलाइट को अपन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का नाम दे देते हैं। So what is a geostationary satellite? It is a necessary satellite in the equatorial plane which moves with the same angular velocity as of the rotation of Earth. दोनों बातें आ गई ना, सेम एंगुलर वेलोसिटी में डायरेक्शन भी आ गया वेस्ट टू ईस्ट और द मैग्नीट्यूड भी आ गया। अब मुद्दा ये है कि भाई ऐसी सेटिंग्स करके हमारे को फायदा क्या है? सो दैट कम्स अ फोर्थ पॉइंट, दैट इफ द ओमेगा इज सेम वी राइट टी। व्हाट इज दैट? टी रिलेटिव। T relative will be 2 pi upon omega relative. मतलब क्या है इसका? अभी समझाता हूँ। That 2 pi upon omega relative, that is 2 pi upon omega. Omega relative लिखो. That is omega for the satellite minus omega for the earth. Relative to earth देखेंगे ना, क्योंकि हमारा ऑब्जर्वर कहाँ पर है? अर्थ पे कहाँ पे? सरफेस पे। So our observer is supposed to be present on the surface. तो मान लेते हैं कि हमारा ऑब्जर्वर जो है वो सरफेस पे था। तो अगर हमारा ऑब्जर्वर सरफेस पे था तो कहीं पे बनाना पड़ेगा, तो कलर लेते हैं दूसरा, रेड कलर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ पे सरफेस पे था, ठीक है। तो हमारी सैटेलाइट कहाँ थी? तो हमारी सैटेलाइट जो थी वो कहीं यहाँ थी, ठीक है। तो ये इसको देख रहा था, ये इसको देख रहा था। अब क्या हुआ, जो सैटेलाइट है वो तो घूम के यहाँ पहुंच गई, तो हमारा ऑब्जर्वर भी घूम के अर्थ के साथ वहीं पहुंच गया, क्योंकि अर्थ भी तो घूम रही है, अर्थ भी तो घूम रही है, तो वो ऑब्जर्वर भी घूम रहा है, तो वो ऑब्जर्वर भी घूम रहा है। सो इसका मतलब अभी भी वो जो सैटेलाइट है वो उसकी एलओएस पे आएगी। कहां पर आएगी? एलओएस पे आएगी, क्योंकि जितना एंगल जो सैटेलाइट टर्न करेगी गिवन टाइम में, उतना ही एंगल वो ऑब्जर्वर भी टर्न करेगा। देखो ये देखना ध्यान से, लाइक 10 है ना, ये हमारा जो अर्थ है तो उसका ये इक्वेटोरियल प्लेन ऐसे देखो, ठीक है, और ये सेंटर देखो, ठीक है। तो अब अर्थ की पोजीशन को भूल जाओ, अब ये सेंटर है, तो हमारा जो ऑब्जर्वर था यहाँ था और सैटेलाइट यहाँ थी, तो ये लाइन बनती। फिर हमारा ऑब्जर्वर यहाँ पहुंच गया और सैटेलाइट यहाँ पहुंच गई, तो ये लाइन बन गई। ऑब्जर्वर भी घूमा
और सैटेलाइट भी घूमी। एंगल के लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं। तो ये जो एंगल ट्रैवल हुआ, तो सैटेलाइट का भी तो सेम ही एंगल ट्रैवल हुआ जो यहाँ पे ऑब्जर्वर का हुआ। सो ऑब्जर्वर ऑल्सो रोटेट्स बाय द सेम एंगल एंड सैटेलाइट ऑल्सो रोटेट्स बाय द सेम एंगल। इसका मतलब दोनों सेम टाइम में सेम एंगल रोटेट कर रहे हैं, तो दोनों की ओमेगा सेम है। पॉइंट टू नोट कि उस ऑब्जर्वर को जो कि इक्वेटर पे है, कहां पर है, इक्वेटर पे है, उसको वो सैटेलाइट अपनी फिक्स पोजीशन पे दिखेगी। वो सामने देख रहा है तो उसको सामने ही दिखेगी। वो सैटेलाइट आगे गई, वो बंदा भी तो घूम गया, तो उसको भी उधर ही दिखेगी। इसका मतलब उसके लिए सैटेलाइट मूव नहीं कर रही। सो रिलेटिव टू दैट ऑब्जर्वर एट द इक्वेटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, द सैटेलाइट अपीयर्स स्टेशनरी। कैसे? वो इस एक्सप्रेशन में देखो, दैट इज 2 पाई अपॉन 0, सो देयरफॉर द टी रिलेटिव दैट बिकम्स इनफाइनाइट। टी रिलेटिव का मतलब ये होता कि जो सैटेलाइट है वो अर्थ के रिस्पेक्ट में कितना टाइम लेती एक चक्कर काटने में। दोबारा से, टी रिलेटिव का मतलब होता कि जो सैटेलाइट है वो अर्थ के अराउंड एक चक्कर काटने में कितना समय लेती। तो वो इनफाइनाइट आ रहा है। तो वो इनफाइनाइट क्यों आ रहा है? क्योंकि वो कभी उसके रिलेटिव एक चक्कर खत्म कर ही नहीं पाएगी। रीजन, वो और अर्थ सेम स्पीड से ही रोटेट कर रहे हैं, रेवोल्यूट कर रहे हैं। इस वजह से टू एन ऑब्जर्वर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, दिस पर्टिकुलर सैटेलाइट इज ऑलवेज अपीयरिंग स्टेशनरी। एक्चुअली में मूव कर रही है, एक्चुअली में सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही है, बट टू एन ऑब्जर्वर इट इज अपीयरिंग स्टेशनरी। यहां से इसका नाम पड़ता है as a geostationary satellite. So what is the geostationary satellite and why it is known as a geostationary satellite? Reason, to an observer on the equator at surface of earth, the satellite appears stationary, है ना। और इसी वजह से इस पर्टिकुलर ऑर्बिट को हम पार्किंग ऑर्बिट भी बोलते हैं। जिस तरीके से आपने अपना व्हीकल पार्क कर दिया हो, एक्चुअली में वो मूव कर रहा है, पर इस ऑब्जर्वर को लग रहा है कि वो सैटेलाइट वहीं पे पार्क्ड है, वो हिल ही नहीं रही है, पर एक्चुअली में मूव कर रही है, वो हमें पता है ना। बट इस ऑब्जर्वर के हिसाब से वो क्या है, स्टेशनरी। सो हेंस इट्स अ ज्योग्राफिकली स्टेशन्ड सैटेलाइट। कहाँ पे है भाई? ऊपर है कहीं पे, कहाँ है एग्जैक्टली पता करो। तो पता करते हैं कि वो सैटेलाइट एग्जैक्टली का, अभी हमने 4 पॉइंट्स लिख लिए। इक्वेटोरियल प्लेन में west to east direction, same speed as of the earth rotation, that means 7.27 into 10 power minus 5, and relative to an observer on the surface of the earth at the equator, it appears in a state of rest. ये 4 पॉइंट्स हमारे क्लियर हो जाते हैं। नाउ ये है कहां पे? वो बहुत सिंपल है, देखो, क्योंकि दोनों की ओमेगा सेम है, और ओमेगा क्या होता है, 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। सो इट इज प्रीटी मच क्लियर दैट टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। इसका मतलब एक चक्कर पूरा ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ और उसका एक रेवोल्यूशन किसका, सैटेलाइट का, सेम समय में होता है। सो दैट टाइम पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द सैटेलाइट इज इक्वल टू द टाइम पीरियड ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। करेक्ट? करेक्ट है। वो कितना है? 24 घंटे। दैट इज 24 आवर्स। ऑफ कोर्स यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू सेकंड्स, राइट? दैट्स अ 24 आवर्स, दैट्स अ कंप्लीट वन डे। ओके, सो ये टाइम निकल गया। तो फिर अच्छा, टाइम निकल गया, टाइम निकल गया, तो फिफ्थ पॉइंट यू कैन फाइंड एच। एच का एक्सप्रेशन लिखा था हमने, क्या लिखा था? कुछ याद है? कहां से लिखा था? टाइम पीरियड लिखा था हमने 2 पाई अपॉन रूट जीएम इंटू स्मॉल आर पावर 3/2, फिर इसको ब्रेक करके लिखा था, है ना। तो कैसे आएगा? दैट इज टी रूट जीएम अपॉन 2 पाई रेस टू दी पावर 2/3 माइनस ऑफ आर। ये हमने एक्सप्रेशन बनाया था, ये हमने एक्सप्रेशन बनाया था। इसके अंदर कैपिटल आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ, पहले से पता है। कैपिटल डी, अरे ढूंढ लिया, ढूंढ लिया, सेट कर लिया, कितना 24 आवर्स, वो कैपिटल डी यहाँ प्लेस कर देंगे। कैपिटल जी पहले से पता, कैपिटल एम मास ऑफ द अर्थ पहले से पता है, तो ये एच कैलकुलेट हो जाएगा। तो एच कैलकुलेट हो जाएगा और ये कैलकुलेट करके आपका 35,920 किलोमीटर आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज डालोगे। टी कितना? 24 आवर्स। जी कितना? 6.67 इंटू 10 पर माइनस 11। एम कितना? 6 इंटू 10 पर 24 किलोग्राम मास ऑफ द अर्थ। रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 किलोमीटर। ये सारी वैल्यूज डाल के 35,920 किलोमीटर आएगा।
मुश्किल है याद रखना। सो बुक्स कहती हैं अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर पे आ जाएगा। मुश्किल है याद रखना, तो बुक्स कहती हैं अप्रोक्सीमेट 6 ऑफ आवर आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट। So what's the height of a geostationary satellite? That is 6R. That is 36,000 kilometer exactly. But we mentioned this. ये सेंटर से नहीं है दोस्त, में सरफेस से है। कितना है? 6R है। सेंटर से चाहते हो तो वो भी मिल जाएगा, वो आपका 7R आ जाएगा। तो ऑर्बिटल रेडियस अगर देखोगे, so what is the orbital radius? That is equal to small r, that is r plus h, that becomes equal to 7 of r. कितना? 7 of r. That is supposed to be the orbital radius of a geostationary satellite. That's your fifth point. आपने रेडियस पता कर लिया, हाइट फिक्स होनी चाहिए। अगर वो उस हाइट पे है तभी उसका टाइम पीरियड 24 आवर्स आएगा, क्योंकि एच और टी का एक्सप्रेशन यही समझा रहा है, बाकी टर्म्स कांस्टेंट है। अगर वो उस हाइट पे है तो ही टाइम 24 आवर्स आएगा, तो ही वो सैटेलाइट एक ऑब्जर्वर को जो कि सरफेस ऑफ अर्थ पर है स्टेशनरी अपीयर होगी, ताही उसका जो नाम पड़ेगा दैट विल बी द जियो स्टेशनरी। और ये सब कुछ तभी होगा अगर वो सैटेलाइट इक्वेटोरियल प्लेन में होगी और विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी मूव करेगी। दीज आर द 5 कंडीशंस। And the sixth, the least to mention and the most important thing to mention, ये बताना कि नाम ऐसा होने के बावजूद ये सैटेलाइट स्टेशनरी नहीं है, या बताएंगे कैसे उसकी स्पीड को कैलकुलेट करके, उसकी ऑर्बिटल स्पीड को कैलकुलेट करके। वो कैसे निकाल सकते हैं? आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं रूट ऑफ GMO वाला, लेकिन आप सिंपल भी तो निकाल सकते हैं आर ओमेगा। सर्कुलर मोशन ही तो है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही है ना, तो v इक्वल टू आर ओमेगा लगेगा ना। स्मॉल आर क्या है? ऑर्बिटल रेडियस कितना है? 7 ऑफ आर। और ओमेगा किसकी है? तो सैटेलाइट की, पर वो तो हमने प्रूफ कर ली, वो तो अर्थ की ओमेगा के बराबर है। सो इनटू ओमेगा ऑफ द अर्थ, अब वैल्यूज प्लेस कर लो, दैट इज 7 इनटू रेडियस ऑफ द अर्थ। रेडियस ऑफ द अर्थ कितना? 6.4 into 10 power 6, and omega for the earth कितना? 7.27 into 10 power minus 5. All the data are with us, और evaluate करके ये जो result है, this comes out to be 3.06 kilometers per second. That's a speed, and pretty high speed, my friends. That's 3.06 kilometer per second. तो बिल्कुल भी वो स्टेशनरी नहीं है, पर बिकॉज ऑफ द रेस्ट ऑफ द कंडीशंस उस ऑब्जर्वर को वो स्टेशनरी फील होती है। तो इसका कोई मेरिट है या डीमेरिट है ना? व्हाट इज द मेरिट ऑफ इट? मेरिट ये है कि वो हमेशा उस ऑब्जर्वर को देख सकती है। ऑब्जर्वर छोड़ दो, नाउ दैट ऑब्जर्वर वाज ऑन अ पर्टिकुलर लैटिट्यूड, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर लैटिट्यूड पे था, उस एक पर्टिकुलर लोकेशन पे था, तो वो उसके आसपास की जगह को हमेशा मॉनिटर कर सकती है, क्योंकि वो तो हमेशा उसको देख रही है, उसके रिस्पेक्ट में वो स्टेशनरी है, तो वो उस जगह को कॉन्टिन्यूस मॉनिटर करती है। सो दैट्स द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। इट इज यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग। मॉनिटर बन गई, राइट? सो इट्स फॉर मॉनिटरिंग। सो दैट्स व्हाट द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स बेसिकली डू। They monitor, and what kind of monitoring? Defense monitoring हो सकती है, weather monitoring हो सकती है, right? So the monitoring service, of course images भी ले लेंगे। So satellites मैंने आपको समझाई, तो ये देखो ये वाली जो satellites आपको दिख रही हैं, these are your low orbiting। मैंने समझाया भी था, डेटा भी दिया था, 200 से 2000 किलोमीटर के बीच में जो सैटेलाइट्स होती हैं उनको लियो बोलते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स, करेक्ट। और जो हम अभी जो हमने पढ़ी उनको जियो बोलते हैं, दैट्स अ जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स। क्या है? जियो मतलब ज्योग्राफिकली सिंक्रोनाइज्ड ऑर्बिट। सिंक्रोनाइज तो है, आपको समझ में आ चुका है सिंक्रोनाइज्ड ऑर्बिट क्या होता है, उसका और क्या मतलब होता है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। ऑल्टीट्यूड देखो वहां पे लिखा हुआ है 35,786, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर, और टाइम तो मैंने आपको बता ही दिया 24 आवर्स, राइट। नाउ द डीमेरिट ऑफ इट। डीमेरिट मतलब, डीमेरिट भी समझा, मेरिट तो समझा दिया कि ये किस काम आती है। डीमेरिट क्या है कि ये पूरे अर्थ के ऊपर फोकस आउट नहीं कर पाएगी। मतलब चेक करते हैं, सी आप ये देखो, जो लेफ्ट साइड वाली एनिमेशन है उसको ध्यान से देखो, तो बीम देखो, दैट इज अ सिग्नल्स which from this satellite can be received on the surface of earth। आप ब्लू बीम देखो खाली, है ना, एनिमेशन में क्लियरली देखो। अब वो फिक्स है, मतलब उतना ही पोर्शन ऑफ द अर्थ जो है जो इससे सिग्नल ले पाएगा। सो होल ऑफ द अर्थ मतलब उसके पीछे का जो हिस्सा है वो तो नहीं ले पाएगा। और अब देखो पोलर हिस्सा जो है, पोलर रीजन जो है, वहां पे ये बीम नहीं पहुंच पा रही है।
right? So this is kind of a demerit, मतलब everyone will not be able to receive the signal from the geostationary satellite. तो हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि भाई कहां तक सिग्नल पहुंच पाएगा, कहां तक पहुंच पाएगा? तो हमने कहा कि ये है पोल्स, तो पोल से हम अपना मोबाइल लेके चले, है ना, मोबाइल लेके चले, हमारे मोबाइल में सिग्नल नहीं आएगा अगर हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पे डिपेंडेंट है। तो आज हमारी डेट में मान लेते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ही हमारे पास है, तो हमारे पास जो डिवाइस है जो कि उस सिग्नल को कैच करती है, डिवाइस में सिग्नल नहीं आएगा। फिर हम चलते गए, हमें बात करनी है, तो हम चलते गए अर्थ के कर्वेचर पे, आगे बढ़ते गए, सिग्नल आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा। अब आ गया, यहाँ पहुंच गए तो आ गया, सिग्नल आ गया, ये हमारी सैटेलाइट है, यहाँ से सिग्नल आ गया। अच्छा, ऐसा इधर भी होगा, इसके बियॉन्ड सिग्नल नहीं आएगा, इस पॉइंट के बियॉन्ड। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सिग्नल टेंजेंशियली निकल जाएगा वहां से, बिकॉज ऑफ द कर्वेचर ऑफ अर्थ, राइट? सो दिस एंगल ओवर हियर, दिस एंगल, लेट मी से दिस इज phi, इस एंगल को हम बोलते हैं कोलैटिट्यूड। क्या बोलते हैं? कोलैटिट्यूड। व्हाट इज अ कोलैटिट्यूड? दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ द लैटिट्यूड। व्हाट इज अ लैटिट्यूड एंगल? ऑफ कोर्स ये तो हमने पहले से पढ़ा हुआ है, ये वाला एंगल जो होता है दैट इज अ कोलैटिट्यूड एंगल। नहीं, उसको लैटिट्यूड बोलते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन के साथ, ये आपका इक्वेटोरियल प्लेन है, दैट इज अ लैटिट्यूड एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ दिस क्या बोलेंगे? कोलैटिट्यूड। अब वो जो कोलैटिट्यूड एंगल है वो कितना है? फाई। तो ज्योमेट्री से ये एंगल फाई हो जाएगा, क्योंकि लैम्डा प्लस फाई 90 है, तो इधर वाला एंगल फाई हो गया। अब यहां से इस ट्राइंगल में हम साइन ऑफ फाई यूज कर लेते, तो साइन फाई कितना आ रहा है? ये साइड तो कैपिटल आर के बराबर है, और दूसरी साइड, ये साइड, दिस इज इक्वल टू कैपिटल आर प्लस एच, मतलब स्मॉल आर के बराबर है। सो व्हाट इज द वैल्यू फॉर द साइन फाई फ्रॉम देयर? दैट बिकम्स कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस एच, और कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। सो स्मॉल आर की वैल्यू हम पहले से ढूंढ चुके हैं, वो कितनी आ रही थी? 7 ऑफ आर आ रही थी, 7 ऑफ आर। हाइट कितनी थी? 6 आर, तो सेंटर से डिस्टेंस कितना था? 7 आर। सो यू गेट साइन ऑफ फाई इक्वल टू 7 आर एंड आर कैंसिल, यू गेट 1 अपॉन 7, right? That's the value for your phi, that is equal to sine inverse of 1 upon 7. That's known as the minimum colatitude to receive the signal, geostationary satellite signal. So minimum colatitude to receive the signal from geostationary satellite. करेक्ट है जी, राइट? और अगर आप एग्जैक्टली वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये जो लैटिट्यूड एंगल आएगा वहां पे, उस जगह का, उस पॉइंट का, उस पॉइंट को पी लिख लेते हैं, क्रिटिकल पॉइंट है, तो वो 81.3 डिग्री आएगा। इसका मतलब जो आपका ये जो फाई कैलकुलेट होके आएगा वो तकरीबन 8.7 डिग्री आ जाएगा वहां पे, राइट? सो दैट इज द लोकेशन till where we can expect the geostationary signal to reach. इसका मतलब जो पोलर रीजन्स है वहां पे सिग्नल बिल्कुल नहीं आ पाएगा, राइट? सो इट इज नॉट एबल टू जनरेट द सिग्नल टू द पोलर रीजन्स, मतलब ये जो रीजन होगा यहाँ पे, ये पूरा, यहाँ पे इसका सिग्नल नहीं पहुंच पाएगा। एंड सिमिलरली ओवर हियर इट विल नॉट बी एबल टू deliver the signals over here, and therefore you require what? The polar satellites. And the polar satellites can have a tilted orbit, not exactly around the equator, has a tilted orbit, तो time period change भी हो सकता है, and because of which we can have the signals at the poles also, right? तो हम टाइम पीरियड भी सिंक कर सकते हैं टिल्ट करके। तो ये पुराना आइडिया था और बेसिक आइडिया था। बाद में ऑफ कोर्स वी वांट जीपीएस नेविगेशन आल्सो टू वर्क, तो इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा? मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी, और मॉडिफिकेशन करके हर एक हिस्से ऑफ अर्थ में हमें अपने सिग्नल्स पहुंचाने हैं, मॉनिटरिंग भी करनी है। तो हेंस वी रिक्वायर द सैटेलाइट्स, जिनको हम पोलर सैटेलाइट्स बोलते हैं। सो दे कैन बी मूविंग एक्चुअली एनीवेयर, they can be actually moving anywhere. The point is that they should be receiving the signal at the poles also. They should be sending the signals and receiving the signals from the poles also. They are basically known as a polar satellites, improvised satellites, है ना? तो वो किसी भी tilt पे काम कर सकती हैं ताकि poles को देख पाएं. That's a polar satellite. So this is for the geostationary satellite, and you can see the animation on the right side that the polar satellites have a tilted orbits also. सो क्लियर है जी आर्टिकल इसका, ठीक है? जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स का मोस्टली क्वेश्चन आपको जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का आता है, तो उसको हमने 6 पॉइंट्स लिखे हैं। दोस आर एक्चुअली 4-5 डिफरेंट क्वेश्चंस जो कि हमने सॉल्व इन कर लिए हैं, राइट?
Now, the left side, the imagery which you can see, this is for the Galileo system of Europe. Right, Europe का ये Galileo system. You can see the number of the satellites over there. That's the imagery over there. You can see the number of the satellites over there. You can see huge number of satellites over there. उसमें से कुछ सैटेलाइट्स बहुत पुरानी होंगी, कुछ लेटेस्ट होंगी जो कि अभी भेजी होंगी या 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल पहले. तो एयर ट्रैफिक इंक्रीज हो रहा है, स्पेस ट्रैफिक इंक्रीज हो रहा है. एज स्पेस ट्रैफिक इज इंक्रीजिंग तो जगह का में कॉलिजन के चांसेस बढ़ते हैं. दूसरा, जो पुरानी सैटेलाइट्स हैं उनकी जो इमेजरीज है, उनकी जो मॉनिटरिंग सिस्टम्स है ओल्ड हो गए हैं, तो वो तो यूज नहीं आएंगे. तो फिर हम क्या करेंगे, उनको एस्केप कराएंगे. यस माय डियर, आई टोल्ड यू, आई विल बी टेलिंग इन दिस लेक्चर ओनली कि हम एक्चुअली में सैटेलाइट्स को एस्केप क्यों करवाते हैं, क्योंकि वो पुरानी हो गई हैं और वो स्पेस ट्रैफिक को यूज कर रही हैं. तो कॉलिजन ट्रैक हो सकता है और इस वजह से हम उनको उसी ऑर्बिट से वापस तो लेके नहीं आते क्योंकि खराब हो चुकी है, पुरानी है, तो हम वहीं से उसको क्या कर देते हैं, एस्केप कर देते हैं, जिसके लिए हमने एक्स्ट्रा स्पीड कैलकुलेट करी थी. कितनी आई थी, और 0.41 टाइम्स ऑफ द ऑर्बिटल स्पीड आई थी. क्लियर है जी. और वो ऑर्बिटल स्पीड कितनी है जियो स्टेशनरी के लिए, अरे जियो स्टेशनरी के लिए तो हम देख चुके हैं वो कितनी है, 3.06 किलोमीटर पर सेकेंड. तो उसको 0.41 से मल्टीप्लाई कर दो, उतनी एक्स्ट्रा स्पीड वहां पे दोगे, उसके करस्पॉन्डिंग उतनी एनर्जी दोगे, वो वहीं से एस्केप कर जाएगी इन द फार डार्क स्पेस. ओके जी, चलो. तो पोलर सैटेलाइट्स के बारे में पूरी कहानी अपने को समझ में आ गई है. सो द लास्ट फॉर द डे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द सिंकॉम्स. किसके बारे में, अबाउट द सिंकॉम्स. द सिंकॉम्स आर अ ग्रुप ऑफ द सैटेलाइट्स. As you can see, the minimum required is 3. As you can see over there in this, we have the 3 minimum satellites. वो क्या करती हैं, they actually operate on the line of sight. That if there is a satellite over there, it can actually send a signal to this particular satellite. This can actually send a signal to this particular satellite, and this can actually send a signal to this particular satellite. They are organized at an angle of 120 degree with respect to each other, ताकि कोई भी पार्ट सरफेस ऑफ द अर्थ पे मिस आउट ना हो जाए. Right, and these 3 satellites which can actually receive and send the signals to every portion and every part of the earth are known as the syncoms. Right, so these are synchronized communication satellites. So repeating again, these are synchronized communication satellites. This is a minimum. Of course, you can keep on adding. तो उससे क्या होगा, उससे और क्रिस्टल क्लियर होगा, मतलब फार एंड्स पे ही हमेशा नहीं देखना पड़ेगा. सो एज यू कैन सी ओवर देयर, you have a system of 5 satellites over there. So for the things to work beautifully, we have around 8 satellites which are in the syncom, such that we are able to monitor each and every corner of the earth so beautifully. Right, so that's known as a syncoms. Right, so with this we are through with the article of the satellite motion. In detail we have discussed about the radius, the orbital radius of it, the height of it, the speed, the orbital speed of it, the time period of it, the energy of it, and also discuss कि अगर वो जो स्पीड है अगर ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, तो फिर ऑर्बिट की ट्रैजेक्टरीज कैसे होंगी. एंड देन वी हैव डिस्कस्ड द डिफरेंट काइंड ऑफ सैटेलाइट्स कि एक लो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट क्या होती है, स्पाई सैटेलाइट क्या होती है, एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है, पोलर सैटेलाइट क्या होती है, एंड फाइनली व्हाट इज द सिंकॉम्स. राइट, सो दिस वाज द डिस्कशन ऑफ द सैटेलाइट मोशन. विद दिस the article is almost there, almost finished. I will be dealing with some numericals of this, and that will be it. That will be it for this completion of this particular chapter. And one condition of weightlessness I'm going to prove in the tomorrow's lecture. And after that, I'm going to kickstart the next chapter with it, right? So tomorrow you must all be present once again for this particular session, and there will be question answer session and couple of other things during that, which we will cover up during the question solving only, right? And I have sent you the homework, so kindly complete the homework. कल और homework भेजूंगा जिससे एनसीईआरटी भी साथ साथ में आपकी कंप्लीट हो जाती है. With this I am taking a sign off for today. कल दोबारा मिलेंगे at the same time, please. Right? So have a nice day till then. Bye.